Hello everyone. New chapter is chapter 13, direct and inverse proportion. Direct and inverse proportion. What is difference between them? Direct means two quantities are increased together or decreased together. Two quantities are increased together or decreased together in a same ratio, in a same manner. That one is known as a direct proportion. And inverse proportion, two quantities are one is increase, second one is decrease. First one is decrease, second one is increase. In a same manner or same ratio, that one is inverse proportion. Means direct proportion is when two quantities are said to be in direct proportion if they are increased or decreased together in such a manner that the ratio of their corresponding value remains constant. Means suppose two quantities given here is a x and y. X suppose 1, y is a 5. x2 तो y क्या होगा 1 के अकॉर्डिंग 2 क्या हुआ 2 टाइम्स ग्रेटर तो 5 10 1 के अकॉर्डिंग 3 3 times greater तो 5 3 is 15 in a same ratio 1 is to 5 2 is to 10 3 is to 50 in a same ratio two quantities are increased together in a same ratio. Clear? So direct proportion. Example of direct proportion. Suppose cost of suppose दिया हुआ है cost of one chocolate is ₹10. Cost of one chocolate is ₹10. तो cost of 5 chocolates क्या होगा 10 into 5 50 rupees. Means one chocolate से 5 chocolate increase हुई 10 rupees से क्या हो गया 50 rupees. Means both number of chocolates increase हो रही हैं तो cost of chocolate भी क्या हो रहा है increase हो रहा है. So this is a direct proportion. So in exercise 13.1 we will study direct proportion and 13.2 in an inverse proportion. Yeah. So first one, in direct proportion two quantities. Suppose this one is x and this one y. Means अगर हम लें number of chocolates तो हमने क्या ले लिया x और cost of chocolates को क्या ले लिया y. यानी इसके अकॉर्डिंग क्या होगा ये x1 और x2 y1 and y2 आपकी four things 4 2 और 3 quantities are given उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है. तो इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए क्या हो जाएगा x1 upon x2 is equal to y1 upon y2. x1 upon x2 is equal to y1 upon y2. ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है. फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1 upon x2 is equal to y1 upon y2. या भी लिख सकते हैं x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं. आपको एक फॉर्मूला बस लर्न करना है उससे आप उसी तरह के क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर चेंज करके वैल्यू अंदर लिख सकते हैं. x1 upon x2 is equal to y1 upon y2. एग्जाम एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन सपोज दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया फाइंड आउट करना है कि गिवन रेशियो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं. So first question is find the given two quantities are in direct proportion or not. It is mean
Find the ratio between two. Suppose 4 hours is a cost of rupees 60, 8 hours cost of 100, 12 hours cost of 140. 4 to 8 2 times, but 60 to 100 not 2 times. 60 का 2 times क्या होना चाहिए? 120. 4 to 12 3 times. 60 to 3 times 180. So this is not a same ratio. So this is not in a direct proportion. It is not in a direct proportion. Means parking charge are not in direct proportion to the parking time. First question. Same ratio में भी होना चाहिए. Ratio. Then direct proportion. Second question, a mixture of the paint prepared by mixing one part of a red pigment with 8 parts of a base. This question is given part of red pigment parts of red pigment. X है, one base है, parts of base. Base by दिया. x1 x2 इस फॉर्म में जिस रो में होगा उसी में x आएगा. x1 x2 x3 y1 y2 y3. यह 1 पार्ट में 8 पार्ट बेस होता है. तो अगर आपसे पूछा जाए 4 अगर रेड पिगमेंट है तो बेस कितना होगा? 1 का 8 टाइम्स होता है, तो 4 का 8 टाइम 4 8 जा 20 32. क्लियर. एंड फिर उसके बाद अगर पूछा जाए 7 टाइम्स तो 1 7 जा 7, तो 8 7 जा 56 टाइम. इतने को आपको मल्टीप्लाई कर ले जाना जितना आपका फर्स्ट में हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसी पे बेस है आपका. The question 2 above, in part of red pigment 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 800 ml of base? सपोज हमने थोड़ा दूसरी तरह का इसमें टेबल बनाया है, वो आप टेबल बुक के टेबल से थोड़ा डिफरेंट. एक्स लिया है और ये वाई लिया है. एक्स में यहाँ पे रेड पिगमेंट लिया है, रेड पिगमेंट लिया है और यहाँ पे बेस लिया है. अब ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, y1 हो गया और ये y2 हो गया. अब इसमें गिवन है आपको 1 रेड पिगमेंट है तो 75 ml है. ठीक है. तो आपका अगर इसमें है कितना बेस होगा जब 80 100 ml होगा, फाइंड आउट करना है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर्मूला क्या होता है? x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2. x1 क्या है? 1. x2 हमें फाइंड आउट करना है. y1 क्या है? 75 ml. y2 कितना है? 1800. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1875 x2 is equal to 800 into 1. So x2 is equal to 800 upon 75. तो फाइंड आउट करेंगे कितना आ जाएगा? 24 पार्ट्स क्या हो जाएंगे आपके सेगमेंट के होंगे. 1800 ml में कितने पार्ट्स होंगे? 24 पार्ट्स एज अ बेस. सो फॉर्मूला इज x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2. ये आपको टेबल सब क्वेश्चंस में बनानी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 is given. In a machine in Southwick factory fills 840 bottles in 6 hours. So how many bottles will it fill? 5 hours. 5 hours में कितनी बॉटल फिल्स होंगी? तो अगेन ड्रॉ टेबल. ऊपर आपको क्या लिखना है? सेट x एंड y. x हमने ले लिया नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स जो आपके क्वेश्चंस में लिखा है वही आपको. और यहाँ हमने ले लिया टाइम इन आवर्स. इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? x1
x2, x के नीचे ही x1 x2 आएगा, y के नीचे ही y1 y2 आएगा। ये अब x है, नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है 840 बॉटल्स। 840 बॉटल्स कितने आवर्स में फिल हो रही हैं 6 आवर्स। तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल फिल होंगी, हाउ मेनी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फॉर्मूला इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। x1 की वैल्यू 840 अपॉन x2 फाइंड आउट करना, y1 6 y2 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6x2 इज इक्वल टू 840 इंटू 5, x2 यहीं पे रहा, 6 उधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड में अपॉन 6, 6 1 जा 6 1 जा 6, 2 6 4 जा 140 इंटू 5, 14 5 जा 70, 700 bottles means in 5 hours 700 bottles, 700 bottles fill in a 5 hours। आंसर आपको ये आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 given है। Question 5 is a photograph of a bacteria in large 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in a diagram. What is the actual length of a bacteria? Means in a photograph large scale में वो कितना दी रहा है 50,000 times in large area में 5 सेंटीमीटर का जो है बैक्टीरिया वो किस टाइम्स इन लार्ज दिख रहा है फोटोग्राफ में 50,000 times। So actual length क्या है? What is the actual length of bacteria if photograph is large 20,000 times only? तो आपको क्या लिखना है, टेबल फर्स्ट बनाओ। Photographic length and actual length. Photography length and actual length. Actual length ये x हो गया और ये क्या हो गया y। ये हो गया x1 और ये हो गया x2, y1 और ये y2। अगर और ज़्यादा निकालना तो x3 y3 ऐसे ही आपके बढ़ते जाते, क्वांटिटीज आपकी उसमें इंक्रीज करते जाते हैं सब। तो x1 कितना आपको दिया है 50,000, फोटोग्राफ में 50,000 टाइम्स इन लार्ज दिख रहा है, जबकि एक्चुअल लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। तो अगर 20,000 टाइम्स इन लार्ज दिख रहा है तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। x1 इज 50,000, x2 इज 20,000, जो वैल्यू दी है वो पुट करते जाने, y1 5 y2 हमें फाइंड आउट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो गया y2 इंटू 50,000 इज इक्वल टू 5 इंटू 20,000। तो y2 इज इक्वल टू 5 इंटू 20,000 divided by 50,000, 0 कैंसिल 5 5 कैंसिल, क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज 2 सेंटीमीटर, इन लार्ज फ्रेम इज 20,000 टाइम्स। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन करना है। 5th क्वेश्चन है, उसमें मॉडल शिप एक दिया है और एक उसका मास दिया हुआ है, उसकी हाइट दी हुई है और एक मॉडल शिप की हाइट दी हुई है। तो आपको लेंथ और हाइट बतानी है इसके। ये क्वेश्चन आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7th क्वेश्चन बताते रहे। 7th question is 2 kg of sugar contain 9 into 10 raised to the power 6 crystal. Again draw. Number of crystal, number of crystal x हो गया और weight of sugar
जैसे आप उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। ये एक्स और ये क्या हो गया वाई। वेट ऑफ शुगर, weight of sugar and number of crystal, x1 x2 y1 y2। इसमें एक और आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए x3 और y3 भी आ जाएगा। ये सपोज x2 हो गया, ये y2, ये x3 और ये हो गया y3। अब x1 इज गिवन 2 kg। 2 kg के लिए कितना दिया हुआ है, 9 × 6 raised to the power 6, और हमें फाइंड आउट करना है 5 kg के लिए कितना होगा, और 1.2 kg के लिए कितना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। x1 is given 2 kg, x2 is given 5 kg, y1 is given 9 × 10 raised to the power 6 और y2 हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2y2 is equal to 5 × 9 × 10 raised to the power 6। तो y2 is equal to 9 5 से 45 × 10 raised to the power 6 upon 2। y2 is equal to 45 divided by 2, 22.5 × 10 raised to the power 6। ये आपका क्या हो गया, 5 kg शुगर में कितने होंगे क्रिस्टल, 22.5 × 10 raised to the power 6 क्रिस्टल। सेम 1.2 के लिए निकाल लेंगे, सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और 1.2 के लिए भी निकाल लेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। 8th क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। 9th में आपको दिया है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो जस्ट उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। उसकी हिंट दे दी है, आप उसको जैसे दिया है 9 मीटर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.60 मीटर या 560 सेंटीमीटर। ठीक है, तब इसको भी यूज कर सकते हैं, या इसको एक में है इसको रखना है। जैसे दिया हुआ है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो क्या लिख सकते हैं, 10.50 मीटर और 1050 सेंटीमीटर। तो कोई एक वैल्यू यूज करके हम लोग कर सकते हैं। अब इसी तरह आपका 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन गिवन है, a loaded truck travels 14 kilometer in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? एक मिनट्स में दिया और एक आवर्स में दिया। तो सबसे पहले यूनिट सेम होनी चाहिए, इसकी क्वांटिटीज बेस्ड होना चाहिए। एक में आपको दिया है डिस्टेंस, डिस्टेंस तो दोनों में किलोमीटर, डिस्टेंस किस में है, इन किलोमीटर, और टाइम हम अकॉर्डिंग टू हम लेते हैं। हम टाइम इसमें 1 मिनट में है और 1 आवर्स में है, तो हमने इसको कर दिया इन मिनट। तो जहाँ भी आवर्स होगा उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये x हो गया और ये क्या हो गया, y। ये x1 x2 y1 y2। x1 इज गिवन, x1 कितना दिया, 14 किलोमीटर, कितना जा रहा है उसमें, 25 मिनट्स में, और हमें फाइंड आउट करना है कि 5 आवर्स में, तो 5 आवर्स में क्या होंगे, कितने मिनट, 5 × 60 यानी 300 मिनट्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 300। क्रॉस मल्टीप्लाई x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। x1 इज 14 और x2 फाइंड आउट करना, y1 25 अपॉन 300। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 14 × 300 is equal to 25 × x2। तो x2 is equal to 14 × 300 अपॉन 25। 25 बन जाए 25 2 सॉल्व कर लेंगे इसको।
कितना आ जाएगा 168 किलोमीटर, यानी 5 आवर्स यानी 300 मिनट्स में कितना जाएगा 168 किलोमीटर. In a direct proportion means when both two quantities are increased together या डिक्रीज टुगेदर, एक साथ या तो दोनों बढ़ेंगी या फिर दोनों, जैसे कॉस्ट के लिए आपको एग्जांपल बनाए. स्पीड अगर सेम है तो अगर 1 आवर में आप 60 किलोमीटर जा रहे हैं तो 2 आवर्स में कितने जाएंगे 120, यानी रेशियो बिटवीन देम आर सेम. देन डायरेक्ट प्रोपोर्शन 1:16, 2:120, तो 5 क्या होगा 5 6 300. सेम रेशियो होना चाहिए, यानी 1/60 तो क्या होगा 2/120. कैंसिल करेंगे तो 1/60 ही मिलना चाहिए. फिर 5/300, 5 बन जा 60, मीन्स रेशियो हमेशा इक्वल होना चाहिए. So both two quantities are increased or decreased together in such a manner that ratio will be remain same. So this is known as a direct proportion. This one is a direct proportion. इसके examples भी आप कर दीजिएगा exercise के, और questions भी करना. Examples and questions both. Yeah. So do exercise 13.1 direct proportion. Direct proportion formula of direct proportion. x1 upon x2 is equal to y1 upon y2. Two quantities. First one is x and second one is y. Two quantities हैं, इसके लिए फॉर्मूला सबके लिए अगर x3 और y3 है तो आप इसके कंपेयर निकालेंगे x1 अपॉन x3, y1 अपॉन y3. अगर 2 तो x2 अपॉन x3, y2 अपॉन y3. जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको निकालना. ओके बेटा, गुड डे.